everyone. We are going to discuss about Dincharya or daily regime. So what is Dincharya? So Dincharya is composed of two words, Din and Charya. Din is the time from sunrise to sunset and Charya means activity. So Dincharya is the work that any individual does from sunrise to sunset, and if any individual follows Dincharya, he will always be healthy, beautiful, energy and strength will be gained. So basically दिनचर्या का अर्थ है कि दिन प्लस चर्या दो वर्ड से मिलके बना है ये, जो दिन प्रतिदिन हम अपनी एक्टिविटी जो भी हम काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी फॉलो करते हैं उसको दिनचर्या कहते हैं। अगर एक पर्सन, एक इंसान प्रॉपर दिनचर्या रूटीन प्रॉपर फॉलो कर रहा है, जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बताया गया उस रूटीन को अगर फॉलो करे तो डेफिनेटली he will stay remain healthy for a longer period of time without any disease. Also he will stay beautiful, he will stay young, also energy and strength. Whenever he will get up, he will get up with lots of energy and strength. So Ayurvedic daily routine helps in maintaining balance and harmony in your body and nature by regulating your biological clock and advocating a healthy lifestyle. It also helps in proper digestion, absorption and assimilation of food. The discipline that you adopt in daily routine also improves self-esteem, bring happiness and promotes longevity. So basically आयुर्वेदिक डेली रूटीन फॉलो करने से क्या होता है कि एक बैलेंस मेंटेन रहता है इंसान का, उसका बॉडी और नेचर से, और जो उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसका जो डे टू डे साइकिल होता है, जो उसका डे टू डे रूटीन होता है, उसकी रूटीन फॉलो करने की वजह से वो क्या करता है कि उसका जो डाइजेशन है, उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है या एस्टिमेशन ऑफ फूड है, ये काफ़ी अच्छी तरह से नियंत्रित होता है या काफ़ी अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलता है। और अगर ये डिसिप्लिन, ये अपने कहते हैं रूटीन में एक नॉर्मल डिसिप्लिन अगर इंसान फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली उसका जो सेल्फ एस्टीम है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका कहते हैं हैप्पीनेस लेवल है, सब कुछ मतलब ओवरऑल देखा जाए कि एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करने से हमें क्या होता है कि हमारा सब कुछ अच्छा होगा, सारा कुछ अच्छा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्म मुहूर्त, लाइक दिनचर्या का जो सबसे पहला स्टेप होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, दैट इज गेट अप, डू इट्स टाइम टू वेक अप। ब्रह्म मुहूर्त में क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त, दैट इज द टाइम बिटवीन 4 to 6 AM में उठे। Calm and quiet environment helps in proper prayer, study, feeling of happiness and freshness during Brahm Muhurt. So Vat remains elevated and it helps to proper defecation. So basically ब्रह्म मुहूर्त में उठने का काफ़ी सारा फ़ायदा है। सबसे पहले तो ये टाइम होता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है स्टडी के लिए। अगर आप लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, सम इंटेंस एग्जाम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप नॉर्मल अपने कॉलेज या स्कूल की पढ़ाइयों के लिए भी अगर आप देखो कि अगर आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है, किसी चीज़ के लिए स्टडी करना है, तो स्टडी का जो एक रूटीन है, लाइक इट्स नॉट लाइक एग्जाम के टाइम ही हमें दिनचर्या का रूटीन फॉलो करना है। इट शुड बी कंसिस्टेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग because that time is the best time for study. Also since Vata is predominance in that time, so it is good time for defecation or mal-sar vidhi. Also whenever you will get up, like study में you can feel like कि बहुत laziness होता है, but try to wake up, make a continuity, make a routine. Definitely there will be a certain stage, yeah, after a certain period of time you will, whenever you will wake up, you will feel fresh, you will feel more energetic, you will feel more like likely to work for the things. So children, pregnant women and aged people may require more rest, so they can get up just before sunrise. However, if you don't suffer from any disease and want to keep yourself healthy and happy, you should wake up by 4:30 AM in the morning. If you cannot get up so early, you should try to wake up as early as possible, but you must wake up at least before sunrise. तो डेफिनेटली ब्रह्म मुहूर्त से हमें यही समझना है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रेन है, या जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, या कोई डिसीज़ की वजह से कोई बंदा बहुत ज़्यादा ग्रस्त है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो थोड़ा और आराम कर सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो मतलब क्या कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे। ही कैन टेक सम मोर रेस्ट, he can take some more time to get up, but definitely he should get up before the sunrise. So however if you don't suffer from it, अगर आप एकदम हट्टे कट्टे स्वस्थ हो, एकदम हेल्दी हो और अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो और हैप्पी रखना चाहते हो, सो यू शुड वेक अप बाय 4:30 AM, सुबह 4:30 बजे तो भाई उठ ही जाना है जब भी मॉर्निंग में। और इफ़ यू कैन नॉट गेट अप, सो अगर आप बहुत जल्दी नहीं उठ पा रहे हो तो यू शुड ट्राई टू वेक अप एटलीस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, बट यू मस्ट वेक अप एटलीस्ट बिफोर सनराइज। सो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब यही है कि हमें उठना है, सुबह उठना है, सनराइज से पहले उठना है और उठ के अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। लाइक you can go for studying, you can go for prayers, you can go for reciting something, you can try to explore the newer energy in you which you are developing day by day.